Hello everybody and welcome in MBM classes. Today I am going to start remaining 3 parts of question number 5 of exercise 8.4, and by this we can complete the solution of this particular question 5 of the same exercise of chapter Introduction to Trigonometry. So here question number 5, fifth part. Show that cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equals to cosec A plus cot A. For showing these two are equal, we have to start with left hand side. And when we see towards left hand side, again we don't have any identity which can use directly. Even we don't have any identity in this form in which the cos and sine as minus, because first identity we have as a cos square A plus sine square A, we don't have as a cos square A minus sine square A. So we cannot break as a factor also as cos A minus sine A. So always remember, whenever we are going to solve such type of question in which the cos A, sine A and 1 is there, so instead of 1 we can use directly that identity. That is also not possible. I will tell you why it is not possible. So for such type of question in which we have cos A minus sine A plus 1 and the same number cos A sine A but with minus 1 at the denominator, what you will do, you have to see which number out of the numerator, 3 numbers are there, which one is negative, cos A or sine A. So here we have seen sine A is negative. So individual all the 3 terms of numerator as well as all the 3 terms of denominator divide with the negative term, that means sine A. And I will tell you why it is dividing with this negative. So here first of all we have to write dividing each term by sine A. So here we have cos A by sine A minus sine A by sine A plus 1 by sine A whole divided by cos A by sine A plus sine A upon sine A minus 1 upon sine A. This is your left hand side part, second step after dividing each term by sine A. We have to write in this way. So the next term cos upon sine, as you know, we can write cot A minus, when these two numbers were cancelled, it will come 1. 1 upon sine A will be cosec A. After that, denominator again cot A plus 1, because when you cancel 1 will come, minus cosec A. Now see, I am going to write these two numbers together. See, cot A plus cosec A, and I will write in bracket. I will tell you, you can easily understand why we are going to write in bracket. Now minus 1 here. Denominator you can write as it is. If you want to write again cos and cosec in bracket, you can. But no need to change any sign. After this, instead of this 1 at the numerator, now you have one identity in which we have cot and cosec with the square form. So we'll write cot A plus cosec A minus, instead of 1 you can write cosec square A minus cot square A with the help of third identity, because actually third identity was 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. तो 1 can be written as cosec minus cot. ये हमने इस आइडेंटिटी की हेल्प से 1 की जगह पे cosec square minus cot square लिखा. Denominator में you are not supposed to change this one, as it is copy down, as it is cot A plus 1 minus cosec A. Clear? After that, you can factorize it. So we are going to write first bracket cot A plus cosec A
in bracket, and here cosec A plus cot A, and one more factor cosec A minus cot A. Denominator again we have to copy down as it is. See, 1 की जगह पे ये आइडेंटिटी रिप्लेस करी और इस आइडेंटिटी को आपने फैक्टर फॉर्म में लिखा. अब न्यूमरेटर में दो ग्रुप है, एक तो ये है पूरा ग्रुप और इस ग्रुप में दो अलग अलग फैक्टर्स हैं. पर अब देखते हैं तो दोनों में एक फैक्टर कॉमन है. वो कौन सा कॉमन है? प्लस वाला. ये दोनों कॉमन है तो टेक आउट कॉमन, कॉट प्लस कोसेक. सो आई एम डूइंग हियर दिस साइड, टेक आउट cot A plus cosec A कॉमन. सो इन ब्रैकेट क्या बचेगा? जब ये पूरा कॉमन निकाल दिया आपने तो यहाँ पे 1 बचेगा, और जब ये कॉमन निकल गया तो माइनस के बाद ये पूरा ब्रैकेट बच जाएगा. तो आई विल राइट 1 माइनस एंड इन ब्रैकेट cosec A माइनस cot A. ये स्मॉल ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन डिवाइडेड बाय अगेन एज इट इज with the denominator. You just simple copy down the denominator as it is. No change in denominator. Now see, when you open this cot A plus cosec A as it is, no change. This factor again you copy down as it is. After that, when you open the bracket, it should be 1 minus cosec A minus minus plus, it is cot A. Got it? And denominator जैसा था वैसे ही आपने फिर से कॉपी कर दिया उसको. अब आप चेक करो, न्यूमरेटर में ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल इसके जैसा है. सी 1 माइनस कोजेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोजेक प्लस कॉट. सिर्फ ऑर्डर चेंज हुआ है, साइन चेंज नहीं हुआ है, तो ये पूरा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. तो आपको क्या मिलेगा? कॉट ए प्लस कोजेक, and this is equals to RHS. तो आपने क्या देखा? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए जब भी आपके पास कॉस और साइन वाला टर्म होता है तो 1 की जगह आइडेंटिटी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमारे पास वो आइडेंटिटी माइनस साइन के साथ नहीं होती है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है. तो उसको यहाँ पे हमने ऐसे चेंज किया कि अब इस 1 को आप कॉट और कोजेक के फॉर्म में लिख सकते थे आइडेंटिटी की हेल्प से. फिर आपने आइडेंटिटी लिखी, उसके बाद उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखा, देन कॉमन ब्रैकेट या कॉमन पार्ट उसमें निकाला, और जो रिमेनिंग था उसको सिंप्लीफाई करके यू हैड कॉट ए प्लस कोसेक ए विच इज इक्वल्स टू RHS. तो ये आपका प्रूफ हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड. नाउ नेक्स्ट इन लाइन, क्वेश्चन नंबर 5, 9th पार्ट. प्रूव दैट कोसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई विथ सेक ए माइनस कॉस ए equal to 1 upon tan A plus cot A. Now again it's up to you whether you want to start with left side or right side. Okay, so let me start with left side and see whether it is equals to right hand side or not. As already I told you, sometimes in this prove that question we are going to start from any one side and we'll get the second part, that means other side of the question or equation. But sometimes we are going to solve any one of the part but it is not equal to the other part. So we are going to solve other part also. So first in this question, as I know, that's why I am telling you we can start from any side, but I am going to tell about that I am going to start with left hand side. Let me see whether it is equals to RHS or not. So with this LHS we should write again cosec A minus sin A into sec A minus cos A. Okay, like this. Now change cosec as 1 by sine. So it is 1 by sine. Cosec can be written as 1 by sine. So it is 1 by sine minus this sine A as it is. Similarly, sec A can be written as 1 by cos and this as it is. And it's not compulsory that every time you just change cosec. You can change sine also, no problem. You can write sine as 1 by cosec. Okay. Again after that, according to the question or according to the part, simplify part, you have to take LCM. So when you change sine as 1 by cosec, तब भी आपको साइन उसका एलसीएम लेना ही पड़ेगा. आप ये देखिए, सिंप्लीफाई करने का जो तरीका होता है वो
अपने आप ही आपको स्टेप में दिखता जाता है। जैसे अगर आपने कोजेक को चेंज नहीं किया होता, साइन को चेंज करते, तो ये कोजेक -1 बाय कोजेक होता, तब भी आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ता। तो ये देखते हुए आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने कोजेक को चेंज किया और सेक को चेंज किया। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ये फर्स्ट न्यूमरेटर मतलब फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड में यहाँ पे जब आप ब्रैकेट में फिर से अगेन यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब आप एक चीज बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 1 की हेल्प से। मैंने आपको रिप्लेसमेंट बताया था, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो वहां से अगर हमको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना पड़े तो हम उसको कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसके लिए वीडियो पे जाइए और देखिएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं। तो ये आया आपके पास साइन ए एज इट इज। इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो इंटू का साइन भी लगा सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा साइन स्क्वायर ए, और ये जो डिवाइड में कॉस ए है इसको एज इट इज लिख दिया। नाउ सी, इफ यू आर गोइंग टू कैंसिल अ कॉमन फैक्टर, देखिए कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास सिर्फ एक बचता है कॉस ए और यहां बचता है साइन ए। तो एक्चुअली आपके पास आया कॉस ए इंटू साइन ए, बट दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट तो किया, बट पूरा इसके बाद, अब इसके बाद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट इट इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू आरएचएस। सो व्हाट टू डू, आरएचएस को अलग से करिए। अब आप आरएचएस को जब सॉल्व करते हैं तो आपने लिखा 1 अपॉन tan ए प्लस कॉट ए, ये लिखा। अब आप tan को चेंज कर दीजिए, tan को और cot को दोनों को मैं साइन और कॉस में चेंज करूंगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे साइन और कॉस के टर्म में ही टर्म्स मिले हुए हैं, मीन्स, है ना। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये आपने लिखा 1, इस tan को लिखेंगे आप साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए। सेपरेटली लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। अब आप इसको फिर से, न्यूमरेटर तो वही है, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है। अब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो था उसको तो आप 1 लिख सकते हो, और ये नंबर फिर भी बच जाएगा। तो न्यूमरेटर का 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन ए कॉस ए, ये आपके पास डिनोमिनेटर में। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर जाएगा, तो आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देख लीजिए ये दोनों टर्म आपके पास सेम है, तो आप लिख सकते हैं एट लास्ट LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ लास्ट पार्ट of the question number 5, 10th part, and the question is prove that 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equals to 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta whole square is equal to tan square theta। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट ऑल्सो इक्वल टू tan square theta, और अगर आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे दैट विल ऑल्सो इक्वल्स टू tan square theta। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट दीज टू, मतलब आपस में ये तीनों इक्वल है, ये आपको शो करना है। अगर आपने इन दोनों को सॉल्व कर दिया कि ये दोनों इक्वल है इसके, तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्लियरली दिख रहा है कि दिस फर्स्ट पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू tan square theta एंड द सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो इक्वल टू tan square theta। सो व्हाट टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट, दैट मीन्स LHS। ओके, सो LHS part I am taking these two for solving, that means this part is equals to tan square theta. So 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta, we are solving this one. So 1 plus tan square theta, as you know very well, this is an identity number second. So what is this? It is actually sec square theta. Similarly 1 plus cot square theta, it is also one of the identities. Which one is third one? And third one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta.
अब अगेन यहाँ पे सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को डायरेक्ट अगर मैं tan स्क्वायर लिखूंगी तो आप सब कंफ्यूज होंगे कि कैसे आया. सो व्हाट टू डू, वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ सेक, दैट मीन्स कॉस के टर्म में चेंज कर दो. तो आपने न्यूमरेटर को लिखा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंस्टेड ऑफ सेक स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय कोसेक को लिखा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से. अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए, मतलब साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा. नाउ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऐसे आ गए, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आया डिनोमिनेटर में. एंड यू नो वेरी वेल साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिखते हैं, tan. बट यहाँ पे तो स्क्वायर है दोनों में, इसीलिए हमको भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा. तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, दैट इज equals to this number, given number. So hence 1 plus tan square theta upon 1 plus cot square theta is equals to tan square theta, जो हम लोगों ने ऐसे solve किया. मतलब these two parts are equal, वो हमने show कर दिया. Now we are going to solve this one. Okay, that means अब right hand side को भी check करके देखो, that is will it equal to tan square theta or not. तो अभी हम लोग ने क्या किया, right hand side separate ले लेते हैं. That is equals to 1 minus tan theta upon 1 minus cot theta का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सेपरेट सॉल्व करेंगे. यहाँ पे tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल के फॉर्म में दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं. एक्चुअली 1 माइनस tan भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, 1 माइनस cot भी कोई आइडेंटिटी नहीं है. अगर आपको tan को sin बाय cos या cot को cos बाय sin में चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो. अदरवाइज एक बहुत सिंपल स्टेप है, उसको आप लेके सॉल्व कर सकते हैं. इन दोनों में से किसी एक को रेसिप्रोकल लिख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस tan थीटा को एज इट इज लिखा, एक्चुअली हमें चाहिए tan थीटा, तो क्यों ना हम cot थीटा को ही चेंज करें. तो न्यूमरेटर 1 माइनस tan थीटा यू हैव टू कॉपी डाउन एज इट इज, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot की जगह लिखो 1 अपॉन tan, cot की जगह 1 अपॉन tan, और इसका भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए. अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आ जाएगी, 1 माइनस tan थीटा न्यूमरेटर में जैसा है उसको वैसे ही रहने दीजिए. डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे तो अब वो हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा. ये आपके पास डिनोमिनेटर वाला पार्ट है. तो ये जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, जैसा आप सब जानते हैं कि कैसे या क्यों लिया जाता है इसको ऊपर. तो मैंने उसको लिखा tan थीटा, और ये पूरा आपके पास होल स्क्वायर में चल रहा है. अभी लिखा 1 माइनस tan थीटा एज इट इज, ये जो tan ऊपर गया था वो लिखा. डिनोमिनेटर में अभी भी आपके पास tan थीटा माइनस 1 ये वाला बचेगा. उसके बाद आप लगाते हो पूरे के ऊपर स्क्वायर पावर 2. आपने देखा ये दोनों नंबर 1 माइनस tan और tan माइनस 1 टर्म्स तो सेम है पर साइंस डिफरेंट है. यहाँ पे tan नेगेटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है. यहाँ 1 पॉजिटिव है तो यहाँ tan पॉजिटिव है. मतलब दोनों के टर्म्स सेम है बट साइन अलग अलग है. तो क्यों ना हम किसी एक में से माइनस साइन कॉमन निकाल देते. अब क्या करेंगे, अगर इसमें से आपने माइनस साइन कॉमन निकाला तो इसका मतलब न्यूमरेटर यू हैव टू राइट एज इट इज. ये लिखा फिर से, इसमें से हमने कुछ नहीं किया, आपने इसका स्क्वायर किया. चलो इसको ऐसे लिखेंगे, सॉरी. और डिनोमिनेटर में माइनस साइन कॉमन निकाल के जब कॉमन निकाला तो सारे साइन बदल जाएंगे, मतलब tan नेगेटिव हो जाएगा और 1 पॉजिटिव. तो उसको मैंने पहले लिखा और tan को लिख दिया यहाँ पे. अब आप देखिए, जब आपके पास 1 माइनस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा दोनों ये बड़ा सा ब्रैकेट के अंदर लिखा है और वो तो होल स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म है करके आपने कैंसिल कर दिया. तो डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में जो टर्म बचती है वो है tan थीटा का स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर थीटा. फिर आप बोलते हो नीचे तो माइनस भी है, तो माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा. तो आपने इंडिविजुअली लेफ्ट साइड को सॉल्व किया था तब भी आपको tan स्क्वायर मिला, और जब आपने राइट साइड को सॉल्व किया तब भी आपको सेपरेटली tan स्क्वायर मिल गया. हेंस दीज टू पार्ट्स आर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. And all these questions of exercise 8.4, all question, all,
I'm repeating again, all these questions are very important. So do practice and make sure that you know how to simplify or how to prove all these. Thank you.